अपने कल वाले क्वेश्चनों चों कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम के करके 3-4 क्वेश्चन कटने ही रह गए सी। ये सी क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल जो रह गया सीगा 8 9 10 आ 3 क्वेश्चन जी कल वाली वीडियो च रहिंदे ने पहला उन्होंने करते हैं, फिर आप 17वां क्वेश्चन एक वीडियो च रहिंदा सी उन्होंने करांगे ते आप 4 क्वेश्चन करके उस तो बाद शुरू करांगे एम्पीयर सर्किट लॉ। देखो आ एंगल 90 है तो आ किनारे बन गया 3π/2 3π/2। ਹੁਣ करंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के सामने और पॉइंट आइडियल क्रॉस आर एक दूसरे के बिल्कुल सामने सेम डायरेक्शन च है मीन पैरेलल है तो एंगल 0 होगा तो इस वायर के करके जो मैग्नैटिक फील्ड आऊगा 0 होगा। इस वायर के करके जो मैग्नैटिक फील्ड होगा इस करके 0 होगा, पर इस वायर के करके जो मैग्नैटिक फील्ड होगा ये होगा KI/R इंटू 3π KI/A 3π/2 मैं नाम लिख देंगे एंगल लिख देंगे ये लो जी। और क्योंकि देखो करंट टाइम फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ KI/A ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ KI/A ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ KI/A ਇਨਟੂ 3π/2 ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਡਾਟ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਨਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਵਰਡ ਨੂੰ ਡਾਟ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਨਵਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੰਟ ਇਨਵਰਡ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਨਵਰਡ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਵਰਡ ਨੈਟ मैग्नेटिक फील्ड ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆ 3π/2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ KI/A ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਾ ਲਓ KI/A ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ 3π/2 - 2। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲੀ 3π/2 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟਵਰਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। आ जाओ जी इस दे उत्ते आ जाओ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ देखो हुण वायर की डायरेक्शन ते करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नैटिक फील्ड आउटवर्ड रिप्रजेंट कर रही है KI/A। ਇਹਦੇ ਚ भी मैग्नैटिक फील्ड बाहर ਨੂੰ है KI/A, ਇਹਦੇ ਚ भी मैग्नैटिक फील्ड बाहर ਨੂੰ है आ एंगल 3π/2 है तो ये बन गया KI/A इनटू 3π/2 थीटा नाम लिखता। नेट मैग्नैटिक फील्ड एट O ਦੇ ਉੱਤੇ बन जूगा इट इज इक्वल टू KI/A 2 + 3π/2। डॉट 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 आ जाओ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 करंट कैरिंग वायर्स ने दे आर kept at the four corners of a square of side A। the magnetic field at O ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜੇਗੀ ਜੇ ਆ ਪੂਰਾ A ਹੈ ਆ A ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ √2A ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਣ ਜੂਗਾ √2A/2 A/√2। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ये बन जूगा नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जूगा β² + b² + 2b * b² cos ऑफ थीटा cos 90 है। ਇਹਦਾ अंडर रूट ले लांगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जूगा √2b। b ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ b ਆ ਹੈ ਤੇ b ਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 2b। ਹੁਣ b ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 2KI/A, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ A/√2 है। √2 ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 2 to the 4 to the 8 आंसर बन जूगा 8KI/A। ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ, ਇਹ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾ। ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾ ये कहता है लाइन इंटेग्रल ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू दैट इज वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 टाइम द करंट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। करंट इनक्लोज्ड ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो साडे कोले ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ करंट की डायरेक्शन ये है, ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा सर्कुलर लाइंस होंगी, ठीक है सर्कुलर लाइंस होंगी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ करंट ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड की ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है सेम है तो ये बन जाएगा BDL cos ऑफ 0 ये आ गया म्यू नॉट टाइम BDL cos ऑफ 0 दा इंटैग्रल B ਹੁੰਦਾ है इनू इंटैग्रल ऑफ DL cos 0 1 हो गया इनफाइनाइट वायर है एक होगी म्यू नॉट I by 2 pi r r ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ DL ਲੈ ਲਿਆ Consider a small. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈ it is made up of large number of elements of length DL 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 0 ਹੈ DL ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 pi r ਦੇ 2 pi r ਕੱਟ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ म्यू नॉट I ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਲ ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ एम्पीयर सर्किल ला दी फॉर ए हॉलो स्फीयर च ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੌਲੋ ਸਫੀਅਰ ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਹੌਲੋ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਲ ਆਰ ਹੈ ਇਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ A ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ देखो A पे ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਟਰ B ਡਾਟ DL B ਸਰਕਟ ਲਾ ਲਾਣਾ म्यू नॉट I ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਹੌਲੋ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਹੁਣ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ B ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਫੀਲਡ ਐਟ B ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਹੌਲੋ ਸਫੀਅਰ ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ not sphere cylinder ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ B ਡਾਟ ਵੈਕਟਰ DL is equal to म्यू नॉट टाइम ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ B ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ DL is equal to म्यू नॉट I ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋ म्यू नॉट टाइम I cos 0 ਬਣ ਗਿਆ cos 0 1 ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ DL ਬਣ ਗਿਆ 2 pi r ਇਹ ਹੈਗਾ म्यू नॉट टाइम I ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ म्यू नॉट I by 2 pi r आओ देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट C आउटसाइड द हॉलो स्फीयर एट C आउटसाइड द हॉलो स्फीयर आउटसाइड द हॉलो स्फीयर देखो जी एक ही होगा लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर DDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I सारा कुछ होगी cos 0 1 बन जाएगा B इंटेग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू ए ऑन द सरफेस है स्मॉल r ते कैपिटल R सेम होंगे उते कैपिटल R लिखना पड़ेगा आउटसाइड द स्फीयर है ए म्यू नॉट टाइम I बन जाएगा तो इंटेग्रल जिहड़ा है DL दा 2 pi छोटा r बनूगा इनटू म्यू नॉट I क्योंकि ਅਸੀਂ r छोटा r लिया है एट ए पॉइंट C तो B बन जाएगा स्फीयर नहीं है गलती ना लिखा जा रहा है बार बार ये सिलेंडर है आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर ए सीगा फील्ड एट ए इनसाइड द हॉलो सिलेंडर इनसाइड हॉलो सिलेंडर तो ये बन जाएगा B is equal to म्यू नॉट I by 2 pi r इनु आसान करके लिखन दे मारे साने ਅਸੀਂ इनु 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लो 2 ਨਾਲ डिवाइड कर लो ये बन जाएगा 2 by a ki by r ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2ki by small r ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2ki by small r ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2ki by capital R ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ फिर आ चीज तो सेम होनी सी इत्थे फर्क पै जाना सीगा वो की पैना सी भी साडा पाई r स्क्वायर l जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट I फ्लो कर रहा है एक दे ਵਿੱਚੋਂ कितना कर रहा है I बटा पाई r ਦਾ स्क्वायर l ਤੇ पाई r छोटा r स्क्वायर l ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितना करूंगा I बटा पाई कैपिटल R ਦਾ स्क्वायर l इनटू पाई स्मॉल r ਦਾ स्क्वायर इनटू l l कट गया पाई कट गया ये बन गया I r ਦਾ स्क्वायर ओवर कैपिटल R ਦਾ स्क्वायर ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਲ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ B ਡਾਟ ਵੈਕਟਰ DL ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ म्यू नॉट टाइम I ਹੁਣ DL ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 2 pi r ਇੱਥੇ ਵੀ म्यू नॉट I ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਲ r ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਕੈਪੀਟਲ R ਸਕੁਅਰ
आर ते आर कट गया तो बी बन गया इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। इनू दो नाल मल्टीप्लाई कर लो, दो नाल डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा 2 KI ओवर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। याद रखने का तरीका बड़ा आसान है इसका, यानी कि 2 KI by R इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इत्थे वर्ड लिख दो सॉलिड सिलेंडर, इत्थे वर्ड लिख दो सॉलिड सिलेंडर, इत्थे वर्ड लिख दो सॉलिड सिलेंडर, बाकी सारा सेम है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਆਰਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ R ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਰੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ r ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r। ਸ਼ੁਰੂ ਚ 0, ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਫਿਰ ਇਹ। अगर तो एक हॉलो सिलेंडर वास्ते है, हॉलो सिलेंडर, अगर थोड़ा सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है तो स्मॉल आर दे नाल पहला ऐदा होगी। पर सॉलिड सिलेंडर वास्ते जे लिखनी आ जाए, सॉलिड सिलेंडर लिए ग्राफ बनाना आ जाए, बी ते आर दा ग्राफ फिर एवें बनाना। पहला ये बनती है, फिर इत्थे आके इत्थे बी वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये है इनसाइड, ये है ऑन द सरफेस, इत्थे स्मॉल आर इक्वल टू, फिर डिक्रीज करती है, डिक्रीज में करती है बी वेरी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। ये सी सॉलिड सिलेंडर वास्ते। आओ देखिए ये एम्पियर सर्कल वाले छोटे छोटे न्यूमेरिकल बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। टाइम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम कितना करंट आऊगा। देखो आउटवर्ड करंट आउटवर्ड है, प्लस दा आऊगा, प्लस दा I1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਰੇ 0 ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ म्यू नॉट I1 ਆਏਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡ ਹੈ, ਇਨਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ आउटवर्ड पॉइंट आ जाता, उरे डॉट आना चाहिए सी, बेसिकली उरे क्रॉस आना चाहिए सी, उल्ट आ रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बन गया म्यू नॉट टाइम माइनस i माइनस 2 म्यू नॉट i। आ जाओ इस ते आ जाओ। हुण करंट दी डायरेक्शन आ देखो, करंट दी डायरेक्शन भी वही ते इहदी भी वही, प्लस दा i1। हुण इधर देखो करंट दी डायरेक्शन ते मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन सेम है, प्लस दा I2। हुण करंट दी डायरेक्शन इधर नु, पर मैग्नेटिक करंट ऊपर नु है, पर मैग्नेटिक फील्ड ओदे अपोजिट डायरेक्शन च है। इसदा मतलब किवें लिखांगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बन जाऊगा म्यू नॉट टाइम प्लस दा I1 प्लस दा I2 माइनस दा I3। आ जाओ अगले ते आ जाओ। हुण देखो आउटवर्ड ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड। हुण देखो आ पॉइंट है जिहड़ा आउटवर्ड आ रहा है, इत्थे प्लस दा आई आ गया पहले केस च। दूसरे केस दे विच ये डॉट है, आना की चाहिए सी क्रॉस, ये माइनस दा आई आ गया। तीसरे केस च ये क्रॉस है, आना की चाहिए सीगा डॉट, ये माइनस दा आई आ गया। चौथे केस च ये क्रॉस आना चाहिए सीगा, आ की गया डॉट, इनवर्ड सीगा क्योंकि देखो इत्थे इनवर्ड डायरेक्शन है, दिख रही किहड़ी है आउटवर्ड है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ माइनस दा आई आ गया, एक प्लस आई माइनस आई कट गया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बन गया माइनस 2i। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर d है। ਇਹ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CBSE 2009 ਦਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ठीक है जी। ये सी कुछ थोड़िया छोटे मोटे क्वेश्चन एम्पियर सर्कल लाते। आओ ये अपनी अगली एप्लीकेशन देखते हैं, सॉलिनॉइड। इन्हें रब करने लगी सॉलिनॉइड। देखो अब अगर तुम ध्यान नाल देखो तो करंट ऐ जा रहा है, इत्थे यहां पे डायरेक्शन इनवर्ड, इत्थे आउटवर्ड, उरे इनवर्ड उरे आउटवर्ड, इत्थे करंट दी डायरेक्शन उरे एक पासे तो करंट एंटर हो रहा है, एक पासे करंट बाहर जा रहा है। इत्थे इनवर्ड है उरे आउटवर्ड है, उरे इनवर्ड है उरे आउटवर्ड है,
उरे इनवर्ड है, उरे आउटवर्ड है, उरे इनवर्ड है, उरे आउटवर्ड है, उरे इनवर्ड है, उरे आउटवर्ड है। सोलेनॉइड की हुंदा है ਆਪਾਂ एक हेलिकल कॉइल है, लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द डायमीटर, लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू डायमीटर, कंपेयर्ड टू डायमीटर, दी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है एज कंपेयर्ड टू इट्स डायमीटर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ आज एक तो साडे कोले उपरले ਜਿਹੜੇ पॉइंट आए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ क्रॉस 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 ਇਹ ਆਇਆ। ਨਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ पॉइंट आए ਨੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ डॉट 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 लो जी अंदर एंटर हो रहे हैं, एंटर 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 एंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर इधर तो ये ऊपर ले करके मैग्नेटिक फील्ड इधर ਨੂੰ आएगा अगर उन्हें कैलकुलेट करना है। हुन इधर के पासे देखो, इधर के पासे देखो, नीचे करंट लीव हो रहा है, लीव हो रहा है, लीव हो रहा है, डायरेक्शन इधर, तो एस इत्थे इस कॉइल दे करके जी डायरेक्शन आऊगी इधर में आऊगी। उरे जे तुसी मैग्नेटिक फील्ड कढना है तो ये करके आ देखो जी, इस पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पासे सेम आऊगी, इस पॉइंट के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर में आऊगी, ऊपर के पॉइंट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर में आऊगी। तो ये आउटसाइड का जिहड़ा हैगा इहदे करके मैग्नेटिक फील्ड बी, इहदे करके बी, आ ते आ आपस च कैंसल, इसदा मतलब आउटसाइड द सोलेनॉइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हैगा। इनसाइड द सोलेनॉइड दे विच आपां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कढनी है, तो इनसाइड कढण दे लई तुसीं की करो, ये ते आउटसाइड पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब इत्थे पूरे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। हुण तुसीं सिर्फ इस इन्हां पॉइंटां दे करके वैल्यू देखनी है, तो इन्हां नूं कढण दे लई तुसीं इत्थे दोबारा अही स्ट्रक्चर बनाओ। इत्थे एक स्केयर ड्रा करो जिस च करंट ऐ फ्लो कर रहे हैं। हुण देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर नूं है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, क्रॉस 180। लो जी हुण मैग्नेटिक फील्ड इधर नूं ते एंगल करंट इधर नूं, एंगल 90 डिग्री। हुण मैग्नेटिक फील्ड इधर नूं, करंट ऊपर नूं, एंगल 90 डिग्री, एंड दिस लाइज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इहदे ते कोई यानी कि साडे कोले कोई फर्क ही नहीं पएगा, इहनूं नाम दे दो ABCD। तुसीं लिखो लाइन इंटैग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I। इहदे ते ABCD ते पहला इंटैग्रल करो AB ते, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ते, फिर इंटैग्रल करो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ते BC ते, फिर इंटैग्रल करो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ते CD ते, फिर इंटैग्रल करो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ते DA ते इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I। हुण BDL AB point lies outside the magnetic field, point lies outside the magnetic field, so B is equal to 0। आ जाओ BC ते, हुण BDL ਇੱਥੇ एंगल होगा cos 90, cos 90 0 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देख लो BC ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ डायरेक्शन इधर ਨੂੰ, करंट इधर, एंगल 90। आई करंट
दी डायरेक्शन ऊपर ਨੂੰ मैग्नेटिक फील्ड इधर ਨੂੰ एंगल 90 CD ਦੇ ਕਰਕੇ DA ਦੇ ਕਰਕੇ मैग्नेटिक फील्ड 0 है CD करके आई हुई है। ਹੁਣ देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੀਨॉइड है ਇਹਦੇ n नंबर ऑफ टर्न्स ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है ठीक है आ बन गया जे n टर्ना नहीं तो बन जाएगा म्यू नॉट n I। ये कितना बन जाएगा B into DL लेंथ आ जी लेंथ है L है n तो B कितने बराबर बन गया म्यू नॉट n बटा L into I। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनू छोटे n नाल लिख दिया ये बन गया B is equal to म्यू नॉट n I। ये वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड दी एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड। आउटसाइड द सोलिनॉइड जेड़ा है मैग्नेटिक फील्ड 0 आउटसाइड द सोलिनॉइड ठीक है। और एट मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ ए सोलिनॉइड एट द एंड्स ऑफ ए सोलिनॉइड एंड्स ऑफ ए सोलिनॉइड एक हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट n I। अगर तुसी कल्ले ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ कल्ले ਇਸ ਕਰਕੇ मैग्नेटिक फील्ड देखना तो हाफ म्यू ਤਾਂ ਵੀ हाफ म्यू नॉट n I ਹੁੰਦਾ। एक गल होर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ एक क्रॉस है करंट एंटर हो रहा है इथों आ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ डॉट है ਹੁਣ देखो अगर तुमने ਇੱਥੇ इस पॉइंट के उत्ते आ एंगल अल्फा हो फाइनाइट सोलिनॉइड ए एंगल अल्फा हो ए एंगल बीटा हो थोड़े फाइनाइट सोलिनॉइड दे विच वैल्यू कढनी हो तो तुसी किवें करोगे फाइनाइट सोलिनॉइड ये होगा म्यू नॉट n I सिर्फ ऊपरली वायर करके बटा 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। हुण तुसी देखो a 90 1 1 प्लस 1 2 सो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट n I आ गया ठीक है। तुसी सेमी उच्च कटना होवे इनु 0 पुट करो sin 91 ता देख लो हाफ म्यू नॉट n I आता है। एसी फाइनाइट सोलिनॉइड का केस। नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक दैट इज टॉरॉइड। टॉरॉइड टॉरॉइड की है किताबां ने ये बेसिकली ए सर्कुलर सोलिनॉइड जिन्हों ਅਸੀਂ टॉरॉइड कहते हैं। करंट की डायरेक्शन इधर इथे मैग्नेटिक फील्ड 0 आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 एंड इथे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 उरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 ये आप देख ही लिया। इनसाइड की होएगी सिर्फ एस पॉइंट की होएगी। हुण करंट ऐ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I ये गल तुहाने पढ़ी है। हुण इहदियां n टर्मां ने DL है जो 2 पाई आर दे है DL cos ऑफ 180 है इथे म्यू नॉट n टर्ना ने करंट माइनस च होगा क्योंकि असी अपोजिट डायरेक्शन च जा रहे हैं माइनस ते cos 180 -1 ते -1 कट जूगा तो B बन जूगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I इनू असी कहते हैं छोटा n B इक्वल टू म्यू नॉट n I ये सीगा toroid that is circular it is basically a circular solenoid ये सीगे साडा Ampere circular law and its applications।